کے سامنے ہے. پہلے خوشیاں منائیں، لڈو بانٹے، اس کے بعد پھر پتھر ہاتھ میں لے لیا اور سر پھاڑنے کے پیچھے پھرتے رہے. مختصر بات کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ان کی طرف سے ان کے جو اسپوکس مین ہیں پرائم منسٹر کے، میں ان سب کو اس کا اسپوکس مین سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کو جتنی ڈائریکشنس ملتی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے ملتی ہیں. کوئی ایک بھی، ہر پارٹی کا ایک اسپوکس مین ہوتا ہے، مگر موجودہ حکومت کے تقریباً 7 سے 8 اسپوکس مین ہیں جو الگ الگ باتیں کرتے ہیں. آج کل یہ ان باتوں سے ہٹ کے ایک بات ان کی عام ہو گئی ہے، تو ہم مہازارائی کریں گے، ہم چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ مہازارائی کس سے کریں گے؟ عوام سے کریں گے؟ پولیٹیکل پارٹیوں سے لڑیں گے؟ یا جوڈیشری سے لڑیں گے؟ جی آئی ٹی نے تو اپنا کام مکمل کر لیا. یا آپ نے کافی جگہ پہ نام ایجنسیوں کا لیا ہے، کوچ کا لیا ہے ڈائریکٹ وے میں، ان سے کریں گے؟ پولیٹیکل پارٹی سے مہازارائی میں سمجھتا ہوں آپ کرنے کے طاقت نہیں رکھتے، نہیں آپ کو ہمت ہے، نہیں آپ میں اتنی جرأت ہے، نہیں آپ یہ کر سکتے ہیں. رہی عدلیہ، ہاں اس بات کو میں مانتا ہوں کہ ماضی میں آپ کا ریکارڈ بہت اچھا ہے، آپ نے عدلیہ کے ساتھ مہازارائی کی ہے اور وہ مہازارائی کا فائدہ بھی لیا ہے. آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر حملہ کیا، اور آج یہ سچویشن ڈیولپ نہیں ہوتی. یہ آپ کے وزراء یا اسپوکس مین جو باتیں کر رہے ہیں یہ کبھی سامنے نہیں آتی اگر آپ کو اس 98 کے اس ایکٹ میں، جب آپ نے پاکستان کے سب سے بڑی عدالت پہ حملہ کیا، اس وقت آپ کے اوپر کوئی ایکشن ہوتا یا عدلیہ کوئی ایکشن لیتی. اور بدقسمتی تھی اس وقت عدلیہ کے کچھ لوگ آپ کے جیبوں میں آ گئے تھے. بچہ ہو یا بڑا ہو یا اس وقت کے وکلا ہو یا اس وقت کی بار ہو، وہ سب جانتے ہیں کہ اسلام آباد سے کوئٹہ کس وقت سے جہاز میں فلائٹ کیا، کب پہنچا، کیسے آئے، کس طریقے سے ججز کو بٹھایا گیا، کس طریقے سے پاکستان کے ایک چیف جسٹس کو آپ نے بے عزت کر کے اتارا. کو جا کے یہ معلوم ہوتا کہ آپ جوڈیشری اس نقطے پہ صرف ایک ہو جاتی کہ عدلیہ پہ حملہ ہوا ہے، کسی شخصیت پہ حملہ نہیں ہوا. وہ چیز آج شاید آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی آپ کے سامنے یہی چیز ہو کہ آپ عدالت سے مہازارائی کرنا چاہتے ہیں، ٹکراؤ لینا چاہتے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میری پارٹی، میں تو خود کچھ نہیں ہوں، میں جو بولوں گا اپنی پارٹی کی پالیسیز کے مطابق بولوں گا. یہ وقت گزر چکا، یہ 90s نہیں، یہ 20 سینچری ہے، یہ زیرو ڈسٹنس ورلڈ بن چکا ہے. کوئی چیز چھپتی نہیں، کوئی اٹھتا ہے تو پتہ پڑتا ہے، کوئی بریف کیس لیتا ہے تو اخبار میں آتا ہے، چاہے وہ نیب اس پہ ایکشن لے نہ لے ایک الگ بات ہے. تو یہ ساری چیزیں اب کس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو یہ چیز واضح ہے، وہ بتانا بھی چاہتا ہوں، کوئی پیچھے ہو نہ ہو مگر پیپلز پارٹی اپنے اداروں کے پیچھے کھڑی ہے. آپ نے اس وقت میں، مختصر وقت میں، اس 3 4 6 مہینے میں، جو اس سے پہلے بھی تھا مگر کسی نہ کسی طریقے سے اس سے آپ کو سیف گارڈ مل جاتا تھا، مگر 6 مہینے جو گزر چکے ہیں، آپ نے جو حالات اس ملک کے اداروں کے ساتھ کی ہے، میں سمجھتا ہوں آج سے آج تک کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے، یا ایون میں سمجھتا ہوں ڈکٹیٹوریل ٹائم آیا، ان لوگوں نے بھی جان بوجھ کے یا سیاست کرتے ہوئے اداروں سے ٹکراؤ لینے کی کوشش نہیں کی.
مگر آپ نے پاکستان کے اداروں کو جس طریقے سے ملائن کیا ہے اور اس کا نقصان جو ریاست کو پہنچا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اس کو ریپیئر کرنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے ٹائم درکار ہوگا۔ ہم نے خدا کر کے اس جمہوریت کو سیو کیا، بچایا، پارلیمنٹ کو بچایا۔ 2014 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے اوپر بہت بڑا الزام لیا، جو آج بھی آپ لگاتے ہیں۔ آج بھی آپ کے کافی اینکرز، کافی میڈیا جو آپ کے ہاؤسز ہیں، وہ اس بات کہتے ہوئے گھبراتے نہیں، ڈرتے نہیں، خوفزدہ نہیں ہوتے، بولنے سے قاصر نہیں ہوتے، یہ کہہ ہی دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کوئی فرینڈلی رول تو ادا نہیں کرے گی، مگر اس فرینڈلی رول جو آپ کہتے ہیں، آپ حق جانب ہیں، کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے شاید اتنی قربانیاں کسی نے نہیں دی ہوں۔ جمہوریت کے بحالی کا ان کو علم نہ ہو کہ جمہوریت کس طریقے سے بحال ہوئی ہے اس ملک میں، عوام کو کس طریقے سے حق خوداریت ملی ہے، حق حاکمیت ملی ہے، وہ پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے جو 60 میں ذوالفقار علی بھٹو نے کیا۔ ہمیں اس کا پتہ ہے کہ جمہوریت کو بچانے کے لیے ہم نے تخت دار پہ بھی چڑھے، یا مقتل میں بھی ہم نے شہادتیں پائیں، یا کوڑوں پہ کھڑے ہو کے کوڑے کھائے جیلوں میں گئے۔ کسی پارٹی نے اتنی تکلیف کاٹی نہیں۔ ایک مرتبہ فارچونیٹ یا انفارچونیٹ مسلم لیگ کے اوپر وقت آیا، مگر آپ نے دیکھا کہ وہ خود بھی غائب ہو گئے نقشے سے، اور سیاست سے بھی خدا حافظ کہہ دیا۔ ان کے جتنے لوگ تھے، کوئی پرویز مشرف کے پاس بھاگ گیا، کوئی کدھر بھاگ گیا، کوئی اپنی جماعت بنا لی، کسی نے خاموشی اختیار کر لی، کوئی نون میں رہتے ہوئے بھی گھروں میں نظر بند ہونے کو ترجیح دی اور رابطے کر کے ترجیح لی۔ تو اس سیاست سے اس کو واپس لانے کے لیے پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ پھر اپنی جان دی۔ آج آپ بڑی بڑی بڑکے مارتے ہیں، بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جب سے GIT بنی اور جو کچھ اس میں کیا، پیپلز پارٹی نے کوئی ایسا رول ادا نہیں کیا، کوئی ایسا دباؤ نہیں ڈالا GIT کے اوپر، یا ایسی پریس کانفرنسز نہیں کی، یا ایسے حالات پیدا نہیں کیے جس سے یہ کہا جائے کہ پیپلز پارٹی نے بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ پیپلز پارٹی اوائڈ کرتی رہی اور یہی کوشش کرتی رہی کہ ادارے اپنے فیصلے خود کریں، اپنے جو ان کے پاس اتھارٹیز ہو وہ ان کو پراپر یوز کرے اور سوالات یا جوابات خود حاصل کر لیں۔ اسی درمیان جو بھی GIT کا رول رہا وہ آپ کے سامنے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ ایک افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ میاں والی کے علاقے قمر مشاہی ساتھی نالے میں 3 بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے ہیں، جن میں 2 سگے بھائی بھی شامل ہیں۔ اسی پر مزید گفتگو کریں گے اپنے نمائندے زبیر ہاشمی سے بھی۔ فی الحال آپ کو بتائیں کہ افسوسناک خبر میاں والی سے سامنے آئی ہے، جہاں پر قمر مشانی کے علاقے میں 3 بچے برساتی نالے میں ڈوب کر جاں بحق ہوئے ہیں۔ ان مرنے والوں میں 2 سگے بھائی بھی شامل ہیں۔ ہلاکتوں کا یہ سلسلہ ملک بھر میں جاری ہے۔ تیز طوفانی بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے، جس کے باعث متعدد ایسے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ آج میاں والی کے علاقے قمر مشانی میں یہ افسوسناک واقعہ دیکھنے میں آیا، جہاں 3 بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور ایک مرتبہ پھر آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پارٹی رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ احتجاج کے اس دھرنے سے واپس آ رہا ہوں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے روزگاری کے لیے چیخ رہے ہیں، جن کو پیپلز پارٹی نے روزگار دیا، جن کو پیپلز پارٹی نے روزگار میں سمجھتا ہوں نہیں دیا، جن کو روزگار دیا گیا تھا کس حکومت نے دیا، مگر ہم نے ان کو ریگولرائز کیا، جو آج تک یہ گورنمنٹ ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ سراپا احتجاج ہے۔ مزدور جو ہے آج بھی اپنی تنخواہوں کے لیے، اپنے رائٹ کے لیے روڈوں پہ ہے۔ کسان کی میں نے بات کی، گورنمنٹ ملازمین ہیں جن کو پاکستان پیپلز پارٹی نے 125% تنخواہیں بڑھا کے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک نئی راہ ان کے سامنے رکھتی، اور بدقسمتی سے اس 5 سال میں آپ نے کیا کیا بتائیں کون کو؟ آپ نے کہا کہ ہم لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے، کیا آپ نے لوڈ شیڈنگ ختم کی؟ کل ہی میں نے ایک میٹنگ کی ہے جس سے میں نے ان سے سوال پوچھا کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں بجلی سستی تھی، لوگوں کو فراہم کی جاتی تھی، ایوریجلی 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی،
आज एवरेज लोड शेडिंग खुद जो सर्वे की गई है, न्यूट्रल सर्वे की गई है, थर्ड पार्टी सर्वे की गई है, 9 घंटे की एवरेज उनकी जो है वो लोड शेडिंग है। अभी तक आप लोगों ने 3,000 साढ़े 3,000 से ज़्यादा बिजली जो है वो भी पीपल्स पार्टी के ज़माने में स्टार्ट हुई, आज तक आपने इनकी है। लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है। आपने क्या इस मुल्क के लिए किया है? सिवाय वो अदारे बनाए हैं, वो प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिनमें आपकी जेबें भरी हैं। और इंशाल्लाह ये चीज़ें जब आप जाएंगे तो ये चीज़ें आपके सामने, अवाम के सामने आएंगी कि क्या इन लोगों ने इस मुल्क के साथ जुल्म किया। ये दावे करते हैं कि हमारे लिए कुछ दिखाया जाए, यकीनन जब हम क्या दिखा सकते हैं इस वक्त, जब आप लोग अपनी टैंपरिंग करते हैं, जब आप खतूत 2006 के अभी बनाते हैं, जिस वक्त वो टाइपराइटर भी नहीं था, वो स्याही भी नहीं थी, जिसका पता पड़ता है अभी JRT ने लिखा है, तो उस वक्त ये चीज़ें थी नहीं। आपने उस 2006 के नाम पे बनाए झूठे किस्म के खत। जब मियाँ नवाज शरीफ खुद जाते हैं, कतरी के लिए सवाल पूछा जाता है शहबाज शरीफ से कि कतरी ने जो कतरी की दौलत थी उसका क्या हुआ, उसने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है। नवाज शरीफ से पूछा गया कि ये क्या हुआ, तो कहते हैं कि मुझे पता नहीं, ये हसन नवाज या हुसैन नवाज को पता होगा। नवाज शरीफ के जो कहते हैं कि कोई एसेट्स नहीं थे, खुद आपने देखा रिजल्ट, एक रिकॉर्ड के मुताबिक वो एक कंपनी में एक मुलाजिम की सूरत में वहाँ पे थे, 10,000 रियाल लेते थे। मुझे तो और उस बात से कोई नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, मुल्क के वज़ीर आज़म हो या वज़रा हो, अगर मेहनत करके खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक बात नहीं। मगर मुल्क का वज़ीर आज़म अगर वर्किंग वीज़ा लेके, एक मज़दूर का वीज़ा लेके दुबई का वीज़ा ले ले, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए शर्म के सिवा कुछ नहीं है। हम कौन को क्या बताएं कि हमारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान में उनको मजदूरी नहीं मिली, वो एक छोटे से मुल्क से मजदूरी वर्क वीज़ा लेके वहाँ जाते हैं, तो क्या शर्म नहीं आती इस कौम को? हमें शर्म नहीं आएगी? ये सारी कौम के लिए बायस शर्म है कि जिस मुल्क का वज़ीर आज़म, इलेक्टेड वज़ीर आज़म, आपको चाहे वो हो ना हो, हमने उनको माना, पीपल्स पार्टी ने माना, जमहूरियत के लिए माना, जमहूरियत के लिए कहा कि मानते हैं, RO इलेक्शंस को मानते हैं हम कि भाई हुकूमत चले, जमहूरियत चले, पार्लियामेंट चले, आगे बढ़े। मगर मियाँ साहब ने कहीं भी उस बात का उसको एहसास नहीं हुआ। और पाकिस्तान आज जिस तरीके से मकरूज़ है, इंटरनल और एक्सटर्नल लोन, पाकिस्तान के हिस्ट्री में मैंने साबित किया अपनी तकरीरों में, बजट में, बाहर बैठ के उस रिकॉर्ड मैंने वो सर्वे जो इकनॉमिक सर्वे है उसके साथ लगा के आपको बताया कि आज जो 2008 से 13 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कर्जे लिए, 2 गुना ज़्यादा इस 4 साल में उन लोगों ने कर्जे लिए हैं। ये किसके ऊपर है? ये भी रिकॉर्ड की अब बात आ गई है कि 2013 मार्च तक पाकिस्तान का आप 73,000 के मकरूज़ थे, आज 1,25,700 के आप मकरूज़ हैं। आप अंदाज़ा करें कि आपने सिर्फ 4 साल के अंदर आप 50,000 के ज़्यादा मकरूज़ हो गए। 50, 60, 65 साल में आप 73,000 के, और सिर्फ 4 साल में आप 50 के। तो ये सारी चीज़ें जो आपके सामने आज आ रही हैं, एक जो सवालात थे, जवाबात थे, ये बहुत बड़ी स्टोरी है। और आपके मीडिया हाउसेज में ये आ चुकी है कि कैलकुलेट किस पे किया है, फाइनलाइजेशन किस पे हुई है, वो आप पढ़ेंगे तो उसमें 62, 63 अब नहीं आता, वो मैटर ही नहीं कर रहा। अब तो आता है वो क्रिमिनल एक्ट जिसमें झूठे कागजात दिए गए हैं, झूठे आपने दस्तावेज़ात पेश किए हैं, और रोपा का आपने जो गलत इस्तेमाल किया है, वो सारी चीज़ें अब वो झूठ में आ गई, वो क्रिमिनल में तब्दील हो गई है। उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर भी एडॉप्ट होगा। अब वो सज़ा की तरफ गए हैं, अब सिर्फ 62, 63 का वाक़या नहीं है। ये सारी चीज़ें अब कौम के आगे हैं। हम ये नहीं कहते कि कोर्ट को क्या करना है। अब ये मसला JRT ने कोर्ट को दिया है, हम मज़ीद ये दबाव डालना उस पर नहीं चाहते। हम सिर्फ मुल्क के लोगों के, आवाम को ये चीज़ वादे करना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने पानामा का इशू 4 अप्रैल को पहली मरतबा, फर्स्ट टाइम 4 अप्रैल को
3 अप्रैल को ये पानामा आया, 4 अप्रैल को गड़ी खुदाबश में मिस्टर एतराज़ असद ने एक्सपोज किया कि ये आया है और इसमें सुना है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और उसकी फैमिली का नाम है। उसके बाद हमने पूरी कोशिश की कि सारी जमातों को, तहरीक इंसाफ को, जमात इस्लामी को, अपना MQM को और ANP को, शेरपाल साहब को और जितनी भी और जमातें थी, शेख रशीद को, सबको बुलाया, मुस्लिम लीग क्यू को, कि आओ बैठो। आपने देखा कि हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस ज़माने में और एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाया, उनके सामने ये चीज़ें रखी। फैसला हुआ कि हमें TORs बनाने हैं। हमने अपने बैठ के एतराज़ साहब के घर में TORs बैठ के बनाए, हमें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, हमें पार्लियामेंट के अंदर ये सारी चीज़ें लेके जाना चाहिए। मगर उस वक्त आपने देखा कि हुकूमत ठस से मस नहीं हो रही थी। अल्टीमेटली फिर दूसरी मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग में भी ये फैसले हुए। हमने पार्लियामेंट में एहतजाज किया कि भाई पार्लियामेंट के साथ बैठ के, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के हम ये फैसला करें, जॉइंट पार्लियामेंट फैसला करें। ये जो हम पे इल्ज़ाम लग रहा है, मुल्क के दूसरे मुल्कों के 2 वज़ीर आज़मों ने इस्तीफ़ा दे दी। एक बात आज पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के अवाम, ये पहला स्कैंडल है जो पाकिस्तान के अंदर से नहीं आया, किसी पॉलिटिकल पार्टी उठा के नहीं लेके आए, किसी अदारे ने किसी को फाइल नहीं दिया, किसी शख्स ने ये स्कैंडल अखबार में नहीं दिया, किसी के एडिटोरियल पे ये स्कैंडल नहीं बना, किसी सुओ मोटो पे नहीं बना। ये एक इंटरनेशनली एक इशू बना जिसमें दुनिया के वज़ीर आज़म भी थे और दुनिया के कोई बड़े लोग भी थे, बिजनेस कम्युनिटी भी थी, और उन सब के नाम आए। उन सब नाम में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उसकी फैमिली के नाम पे थे, और उसके फैमिली ने हर वक्त बैठ के इसकी तरदीदें की। एक फैमिली के बंदे ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक आने की भी एक प्रॉपर्टी नहीं है। जब वो सामने आई तो प्रॉपर्टियाँ भी निकली हैं, हर चीज़ सामने आई है। कहा गया कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक साहब से पूछा गया कि तेरा ख़र्चा कहाँ होता है, उसने कहा मुझे 1500 धर्म जो है या रियाल है वो अपनी बीवी देती है। तो बीवी कहाँ से लाती है, बीवी को कौन सा सोर्स है? जब उनसे पूछा गया उन्होंने कहा मुझे बाप देता है। बाप कहता है कि नहीं जी वो तो इंडिपेंडेंट है, मैं उसको नहीं। इसलिए अगर बाप देता है तो अपने एसेट्स में उसको शो करना चाहिए कि उसकी आमदनी कितनी है। ये फ्लैटों के मसले आए, कहाँ से बने? एक कहता है कि 95 में बने, बेगम साहबा कहती है कि हाँ ये बच्चों की पढ़ाई के लिए ली थी, कोई कहता है कि किराए पे ली थी, कोई मिनिस्टर कहता है कि नहीं हम जब 95 में जाते थे उधर रहते थे। फिर 93 की बात आई, वो सारा रिकॉर्ड फिर आ गया, कादी फैमिली का भी रिकॉर्ड आ गया, क्वींस कोर्ट का भी रिकॉर्ड आ गया। तो हम बेल की बातें हुई, वहाँ इस फ्लैटों की नीलामी की बात हुई, मगर पैसे पिलाए गए, वो नीलामी बच गई। एक एक चीज़ रिकॉर्ड पे आई है, सामने आई है। तो इससे मैं समझता हूँ कि बेहतर ये होगा कि किसी तरीके से भी अगर पाकिस्तान की मज़ीद बिगड़ी हुई इकानमी को बचाना है, अगर किसी में थोड़ी सी भी मुहब्बत वतन की हैसियत शामिल है, जहन में प्यार है वतन के साथ, तो उनको इस बात पे आना चाहिए कि नवाज़ शरीफ पहले अखलाकी तौर पे उनको जाना चाहिए था। अब उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि वज़ीर आज़म के लिए एक मिनट भी तरस जाए। हाँ, आज इस बात का सबसे बड़ा सबूत मुझे खुशी हुई है, मैं समझता हूँ आपको भी खुशी हुई होगी कि आज वज़ीर आज़म के इस्तीफ़ा का मसला उसके कैबिनेट में डिस्कस हुआ है। जिस कैबिनेट में वज़ीर आज़म के इस्तीफ़ा का जिक्र आ जाए, शुरू हो जाए, डिस्कस हो जाए, उस वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म रहना मैं समझता हूँ शर्म की बात है। ये आज बहुत बड़ी एक चेंज नज़र आई है, ये बहुत बड़ी एक ख़बर आई है कि आज वज़ीर आज़म खुद जो चेयर कर रहे हैं उसके वज़ीर आज़म की इस्तीफ़ा का जिक्र आ गया है। चाहे वो अभी इस्तीफ़ा दे, किसी खैर ख्वाह ने जो उसके, मैं उसको हमेशा ये कहता था, मैं आप सबको याद है कि मियाँ साहब तेरे आस्तीनों में सांप है, वो तुझे डस रहे हैं, उनसे बचो। मगर मेरी बात, सैयद की बात मानता, सादात की बात मानता तो उन सांपों को निकाल के बाहर फेंकता। मगर उसने सांपों को उधर ही बैठ के
दूध पिलाता रहा, वो उसको डस के आज इस पोजीशन पे लाए हैं कि अभी उसको कोई जवाब नहीं है कि पाकिस्तान जैसी गयूर कौम का वज़ीर आज़म बने और फिर हमारा वज़ीर आज़म दुनिया के उन ममालिक के साथ आंखें में मिला के बात करे। वो कभी हिंदुस्तान से बात करे, कभी चाइना से बात करे, कभी ईरान से बात करे, कभी अफ़गानिस्तान से बात करे, कभी ब्रिटिशर से बात करे, कभी अमेरिकन से बात करे। किस मुंह से बात करेगा? जब भी वो बात करेगा तो यही बात कर सकता है कि आई एम वेरी गुड कुक, आई कुक वेरी गुड कीमा, यू कम एंड जॉइन अस। तो ये सियासत नहीं होगी अब कीमे की, अब सियासत होगी पाकिस्तान के लोगों की इज़्ज़त और माल और उसके माल की हिफाजत की। इसमें साबित हो चुका है कोई एक आने की भी गुंजाइश नहीं है, एक ज़रे की भी गुंजाइश नहीं है कि वो ये कहे कि मुझसे मुतहसबी की गई है, मुझसे ज़्यादती की गई है। वो एक हिंद मास्टर वाइस की तरह वो बाहर आते गए, यही कहते गए कि मेरा क्या कसूर है, हमें तो बताओ क्या कसूर है। और जब वो डिटेल आए हैं, सारे सवालात आए हैं, तो उनके जवाबात भी सामने आए हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और जवाब होना भी नहीं चाहिए। यही मेरी गुजारिश थी। अभी आप कोई सवाल पूछते हैं, पूछ लीजिए। आप इस्तीफा मांग रहे हैं, कोई ऐसा भी मौका आएगा अगर आपकी बात नहीं मानी जाएगी तो मुत्तहिदा अपोजिशन जो आप बना रहे हैं, आपको ऐसी असेंबली से देखें जिसका वज़ीर आज़म दुनिया में हम आप देखते हैं कि वो वज़ीर आज़म को किस नज़र से देखते होंगे? देखें ये हमारा तो निकलना बाद की बात है। ये फैसला कोर्ट में है, अदालत में है, और उस मुल्क की अदालत फैसला करेगी जो सुप्रीम अदालत है। अल्लाह की अदालत के बाद हमारे मुल्क में ये अदालत है और यकीनन हमारा इस अदालत पे भरपूर यकीन है। हमारी राय ये है कि नवाज शरीफ को जाना चाहिए, इमीडिएटली जाना चाहिए। अपनी पार्टी पे अगर उनको एतमाद है तो अपनी पार्टी का किसी भी शख्स को वज़ीर आज़म बनाए और वो अपना टेन्योर पूरा करे, असेंबली टेन्योर पूरा करे। साहब एक चीज बता दीजिए कि जो आपने जब जेआईटी बनी थी उस वक्त पार्लियामेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि मैं इस जेआईटी को नहीं मानता। आज आप उसी जेआईटी की रिपोर्ट को जवाब बना के वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। दूसरा ये बता दीजिए, रहमान मलिक साहब जब जेआईटी में पेश हुए थे उन्होंने कहा कि मैं पार्टी की मुशावरत से पेश हुआ हूँ। उन्हीं रहमान मलिक साहब को जेआईटी ने चालाक और अनरिलायबल कह दिया। तो क्या वो पार्टी के बिहाफ पे जब पेश हुए तो वो पार्टी की सुस्ती नहीं हुई इसमें? बड़ी मेरे ख्याल में वो उनको डायरेक्टली इन्फॉर्म किया गया है, कोई पार्टी के थ्रू नहीं किया गया है। उसने जो बातें वहाँ की होंगी खुद की होंगी, रिकॉर्ड उसके पास था, पार्टी के पास नहीं था, उसने की होगी, ये उनका मसला है। और फिर भी वो गए हैं वहाँ। जहाँ तक आपका पहला सवाल था, क्या था आपका पहला सवाल? जेआईटी को आपने तस्लीम करने से देखिए, कभी कभी जिस इस मुल्क का जो माहौल देखा गया वो वही था जो हमने बोला। मगर अब इस मुल्क का माहौल चेंज हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि जो मॉडल टाउन की जेआईटी हुई उसका क्या हुआ, और सारी चीज़ों को हमने सामने रखा। मगर इस वक्त अगर उन 6 जेआईटी के जो इन्वेस्टिगेटर्स से अच्छा काम किया है तो हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं ना। शाह साहब मेरा पीपल्स पार्टी की ये सवाल है, पीपल्स पार्टी की बुनियादी फलसफे की बुनियाद पर है। हमेशा पीपल्स पार्टी ने इदारों के और खुसूसन पार्लियामेंट की बालादस्ती की जंग लड़ी है, उसमें आपने बताया भी कुर्बानी दी है। आप ये नहीं समझते कि इस वक्त पार्लियामेंट जो ताकत का मरकज हुआ करता था और आपने बनाया था, उस ताकत के मरकज को तब्दील करने के लिए कुछ इदारे, मैं नवाज शरीफ की बात है कि कुछ इदारे वजारत उज़्मा का ओहदे को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी की उसी रास्ते पर गामजद होती है। और नवाज शरीफ के हटने से आखिर वो तब्दीली क्या आएगी? देखें, एक बात तो आप सुन लें, हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ओहदे को कमज़ोर नहीं करते, मजबूत बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ज़ाती तौर पे अपने वजह से वो कमज़ोर हो चुके हैं, वो इतने मजबूत और ताकतवर ओहदे पे गामदन रहने की उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि हमारा वज़ीर आज़म का वो जो रुतबा है, वो स्टेटस है, वो कहीं कमज़ोर ना हो जाए।
शाह साहब ये बताएं शाह साहब ये बताएं कि अभी आपकी तहरीक इंसाफ के साथ और दूसरी पार्टियों से कोऑर्डिनेशन ऑलमोस्ट हो गई है, जारी है, हाथ हो गया अपोजिशन का आपस में, तो तहरीक इंसाफ वाले आपके बारे में और जरदारी साहब के बारे में बहुत मनफी रवैया रखते रहे और चार्जेस लगाते रहे, क्या ये इत्तेहाद आइंदा इलेक्शन तक है या सिर्फ नवाज शरीफ को हटाने तक? देखें, नवाज शरीफ तो एक अलग सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल पार्टियों, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना नज़रिया, अपना अपना सोच है। एक टारगेट होता है, उस टारगेट के लिए तो सारे जमा होते हैं। जब टारगेट ये टारगेट हमारा कोई अपने लिए नहीं है, ज़ातियात के लिए नहीं है। ये बात ज़हन में रख ले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नवाज शरीफ के ऊपर हमला नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से पार्लियामेंट और जमहूरियत को बचाने का है, और नवाज शरीफ का वहाँ रहना उस पार्लियामेंट में लीडर ऑफ हाउस, तो ये पार्लियामेंट और जमहूरियत कमज़ोर होगी। हम उसको कमज़ोरी से बचाने के लिए जो बाहर सारा सिनेरियो डेवलप हुआ है उसको सामने रखते हुए ये कहा है कि नवाज शरीफ को जल्द ब जल्द जाना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए उसके। जो उसको रोक रहे हैं वो मुल्क के भी दुश्मन है, मुल्क के अदारों के भी दुश्मन है, मुल्क के अदारों को कमज़ोर कर रहे हैं, वो जाए और दूसरा कोई ले आए। हम ये कभी मुतालबा नहीं करते कि हुकूमत चली जाए, पार्लियामेंट चली जाए और नई हुकूमत, नई पार्लियामेंट आए, ये मुतालबा नहीं। इस मुतालबे के बाद आपको अप्रिशिएट करना चाहिए पीपल्स पार्टी के सियासी समझ और बूझ को। जी आप मेरा सवाल इससे थोड़ा सा शाकिर, शहीद गनी का इलेक्शन, कराची का जो इलेक्शन हुआ है उस पर एनपीएम चली गई है इलेक्शन कमीशन में कि इल्जाम आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने 3000 वोट लिए थे, अब 23,000 वोट कैसे, तो इसके इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? रेंजर्स नहीं, सोलंकी बात यह है कि वो इलेक्शन में सारी अंडर द सुपरविजन ऑफ द रेंजर्स हुई है। रेंजर्स के ऊपर उस दिन देखा कि खुद हमारे पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनकी रिजर्वेशन थी, और उस दिन जितना इलेक्शन चढ़ा है सिवाय एक एप्लीकेशन के किसी ने ये एप्लीकेशन नहीं दी है कि ये धांधली हो रही है, ज़्यादती हो रही है या फलाना हो रहा है। वो भी एप्लीकेशन सईद गनी की है, बाकी किसी ने उसमें शिकायत नहीं की है। साफ एंड शफाफ इलेक्शन हुआ है। जहाँ तक 3000 है, जो इनका जीतने का मकसद ही है मेनली कि सईद गनी ने पिछले 4 साल से उसी इलाके की खिदमत की है, वो उसी इलाके का है। जो 4 कैंडिडेट हैं वो चारों अलग इलाके के हैं, और ये इलेक्शन वहाँ महसूस किया गया कि ये उस इलाके 114 के इलाका की इलेक्शन वर्सेस उस 4 कैंडिडेट हैं। वो इलेक्शन लोगों की और वर्सेस दूसरों की थी, सईद गनी की इलेक्शन नहीं थी। आजम ने दो कहा कि जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं वो जमहूरियत फरोश है। आप क्या समझते हैं कि उनका ये जो इस तरह है वो ठीक फरोश है? अभी मैं उसके ऊपर ज़ातियात में नहीं जाऊंगा। जमहूरियत फरोश होते तो 2014 में हम उनकी जमहूरियत को बचाने के लिए, जिससे वो खुद बच गया। मैं इधर कह रहा हूँ आपके सामने, मेरे सामने मियाँ साहब बिला शक लाख तरदीद करे, उनके आंखों में आंसू भरे हुए थे और उसने कहा इनफ इज़ इनफ, ख़त्म हो गया, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो मैंने बाजू से पकड़ के कहा कि मियाँ साहब इतने मत घबराओ, अब हम हैं, ये पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट जमहूरियत को भी बचाएगी और पार्लियामेंट को भी बचाएगी, आप फिक्र न करें। और फिर मेरे कहने पे ज्वाइंट सेशन बुलाया गया। शाह साहब ये बड़ी खबर दे रहे हैं, मियां साहब रिजाइन कर रहे थे धरने के दिनों में, आपने? जी हाँ, वो कहता इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया, क्या करें। तहरीक इंसाफ अल्लाह करे सड़कों पे निकले, मगर उनका लीडर सबसे आगे हो, हम उनसे आगे होंगे अगर कोई जरूरत पड़ जाए। मेरा सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी को ये यकीन है कि इस तमाम मामला के पीछे ये जो पनामा केस आया कोई साजिश नहीं है, अंदरूनी और बैरूनी? और क्या आप नवाज शरीफ से बदला तो नहीं ले रहे कि वो जो काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे? वो बदला लेता तो मैं 2014 में लेता।
जी सोहेल खान आखिरी सवाल सोहेल खान। शाह साहब ये बताएं, एक पीपल्स पार्टी ने वाइट पेपर छाया करने का ऐलान किया था, वो कहाँ तक पहुँचा और क्या उस वाइट पेपर में इन चीज़ों को का भी हिस्सा बनाएंगे? नंबर 1। दूसरा एक मासूम सवाल ये है कि वज़ीर आज़म को आप पार्लियामेंट में चीफ को पुकार करते रहे, जनाब आए, आपकी कुर्सी खाली है, बैठे आए, तो अब भी वो ना आए तो फिर आपका वो कुदरती एक था कि वज़ीर आज़म को पहले ही पता पड़ गया था कि क्या जाके करूं, यहाँ तो मैं जा ही नहीं सकता, जहाँ तो मेरे जो हालात सामने आ रहे हैं, और उस वक्त मैं फिर नहीं गया तो कहेंगे भाग गया, इसलिए वो कहेगा मेरी तो पुरानी रवायत है, मैं जाता ही नहीं था, तो अब भी नहीं। उसने पहले दिन से जब उसको पार्लियामेंट को तस्लीम ही नहीं किया है। आखिरी सवाल अपोजिशन की जमातों के साथ आपने कुछ हुकूमत के इत्तेहादी जमातों से भी रब्ता किया है या नहीं? हुकूमत की जो इत्तेहादी जमात है वो सारी उनसे खफा है, सवाए मौलाना साहब के।